Hello students, welcome to Sanal Naras Engineering Academy. In this video, we are going to concentrate about what students theories of elastic failure. We are going to talk about the theories of elastic failure. Okay, so totally if you will see students, there are 5 types of theories of elastic failure. Principal shear stress है, principal stress theory. Second, you have maximum shear stress theory, maximum principal strain theory, maximum strain energy, or last but not the least, you will have here shear strain energy theory. Okay, आपके पास ये shear strain energy theory भी रहेगा. So totally, see what happens is that we had until now talk about bending stress, shear stress, हमने उसके बारे में भी discuss किए. But actual practice, what happens in actual practice, both the stress act. मतलब बेंडिंग भी एक्ट होने वाला है और shear स्ट्रेस भी एक्ट होने वाला है, साथ ही साथ मोमेंट भी एक्ट होगा, साथ ही साथ टॉर्क भी एक्ट होगा. सो वी हैव टू कंसीडर हियर ऑल दी स्ट्रेसेस. सो ये सब जो स्ट्रेस है, दे आर गोइंग टू कंसीडर वेयर वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑन थियरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर. थियरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर में कंसीडर होगा. ओके, सो दिस इज योर यूनिट. ओके, यूनिट नंबर 5 है. सो क्वेश्चन 5 ए बी को और क्वेश्चन 6 ए बी रहेगा स्टूडेंट्स. ठीक है, सो क्वेश्चन 5 ए बी और 6 ए बी विल बी दैट. सो क्वेश्चन 5 ए विल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्वेश्चन 5 बी विल बी बेस्ड ऑन थियरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर. सिमिलरली ये प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगा और थियरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर. सो वन क्वेश्चन ऑफ थियरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर कम से कम 8 से 9 मार्क्स के लिए तो रहेगा ही. 8 to 9 marks it will be there. So it's one of the easy unit. Only the thing is you have to study the formula आपको आना चाहिए. Okay, at last no need to get confused here. अगर confusion हो रहा है you can start studying other also units. Perfect. Let us start with the formulas देखते हैं. So first of all we know the basic formula here. बेसिक फॉर्मूला तो है डायरेक्ट स्ट्रेस. सो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, पी अपॉन ए. shear stress का फॉर्मूला है S upon A. Okay, shear stress S means what? S means the shear force guys. S मतलब क्या? S मतलब रहेगा shear force. Okay, S will be what guys? S will be the shear force here and A will be its area. ओके अभी होता क्या स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्ट्रेसेस एक्ट दैट विल बी योर प्रिंसिपल स्ट्रेस. अगर x डायरेक्शन में रहेगा तो सिग्मा x, y डायरेक्शन में रहेगा तो सिग्मा y, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 का होल स्क्वायर और टाउ का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा. अगर आपको टाउ मैक्स फाइंड करना है सो इस फॉर्मूला सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 अपॉन 2, ये है फॉर्मूला टाउ मैक्स का. तो आप सोच रहे हैं सर सिग्मा n1 और सिग्मा n2 कैसे फाइंड करना है. सो अगर आप एडिशन किए तो आपको सिग्मा n1 मिलेगा. इफ यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट सिग्मा n2. ओके, सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, formulas of principal stress theorem. तो sigma 1 equal to sigma yt upon FOS. sigma yt ये yield stress है students. This will be yield stress. yield stress का होगा sigma yt upon FOS. If you will divide the denominator by 2 आपको आंसर मिलेगा मैक्सिमम shear stress का. आपको आंसर मिलेगा मैक्सिमम shear stress का. एंड देन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा yt अपॉन FOS का भी रहेगा. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल. ये फॉर्मूलाज है. इन द सेम वे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 सिग्मा yt. ओके, दिस इज y upon what students? Upon FOS का whole square. Here it will be sigma 1 square, sigma 2 square minus sigma 1, sigma 2, sigma yt upon FOS का square. So sigma 1 and sigma 2 is nothing but what here guys? It is sigma n1 and sigma n2 रहेगा. Are you getting this point students? Are you getting this? Perfect. Great. So now without wasting much time let us deeply dive into the numerical part. Numerical part एकदम बढ़िया से बढ़िया देख लेते हैं. We are going to see it. So read करिए क्वेश्चन क्या है. The stresses induced in a critical point in a machine component are made of steel which are as follows. Okay, so sigma x दिया है 120 megapascal,
सिग्मा वाई दिया है -40 मेगापास्कल, टाउ एक्स वाई दिया है 80 मेगापास्कल. Okay, and then sigma yt will be equals to what, students? It will be equals to 380 Newton per mm square. Okay, so sigma x भी दिया है, sigma y भी दिया है, टाउ एक्स वाई भी दिया है, sigma yt भी दिया है. Okay, so this was asked in PYQ 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. We have to find out factor of safety by using maximum shear stress, by using normal stress theory, by using distortion energy theory. Means हमें factor of safety find करना है. Okay, but before finding out factor of safety, let us try to find your principal stresses. अभी sigma x, sigma y और टाउ एक्स वाई तो दिया ही है. No doubt in that, students. Okay, but what we are going to do here is we are going to write here the given data. तो सबसे पहले तो given data लिख लेते हैं. So what is given here, students? sigma x दिया है 120 मेगापास्कल, sigma y दिया है -40 मेगापास्कल, टाउ एक्स वाई भी दिया है 80 मेगापास्कल. So first of all we are going to find out here principal stresses. ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में सिग्मा n1 हम फाइंड करेंगे. So what was the formula guys? फॉर्मूला क्या था बताइए? सिग्मा x माइनस सिग्मा y होल अपॉन 2 प्लस, अगर आप प्लस करते हो स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू डू प्लस हियर, then you will obtain sigma n1, and the rest of is what guys? Rest of the formula क्या था? प्लस sigma x minus sigma y upon 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का भी स्क्वायर. Okay, so here we having the value of what? Sigma x as 120, sigma y जो है वो है -40, and then we have upon 2 plus the root of sigma x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स बताइए? व्हाट इज द सिग्मा वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा x? इट इज 120 माइनस ऑफ -40, क्योंकि सिग्मा y -40 है स्टूडेंट्स, अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई. टाउ एक्स वाई इज हाउ मच? टाउ एक्स वाई 80, so 80 का स्क्वायर. So from here you will easily find out the value of sigma n1. आपको easily sigma n1 मिल जाएगा students. Okay, so sigma n1 is 153 point. Answer is perfect guys. 153.14 megapascal. This is sigma n1. ये है आपका sigma n1. Similarly आपको find क्या करना है? आपको find करना है sigma n2. sigma n2 का भी formula same ही रहेगा students. Same के लिए the formula will be sigma x minus sigma y upon 2 minus, ये माइनस करना है. ठीक है, अंडर रूट ऑफ व्हाट विल बी स्टूडेंट्स? फॉर्मूला क्या था? ओके, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर. ओके, सो इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? माइनस प्लस, यू हैव टू डू योर व्हाट गाइस? यू हैव टू डू योर माइनस. आपको क्या करना है? आपको माइनस करना है. ओके, सो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई था, राइट नो? ओके, एंड पिछला भी फॉर्मूला क्या था? पिछला भी फॉर्मूला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई. लेट अस चेक अगेन गाइस. परफेक्ट परफेक्ट. सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई था ये वैल्यू. ओके, सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सो आपका आंसर यहाँ पे 153 आएगा. और सेम हियर फ्रेंड्स, सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है? सिग्मा एक्स का वैल्यू है 120 प्लस सिग्मा वाई है -40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ, बताइए स्टूडेंट्स, 120 माइनस ऑफ -40 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ गाइस? द वैल्यू ऑफ टाउ इज 80 स्क्वायर. So sigma n2 turns out to be, okay, what is the value of sigma n2? sigma n2 का वैल्यू क्या आया? -73.135.
Okay, perfect. Let us start with step number 1. Step number 9, what we have to find? We have to find factor of safety, but by which theory? बोलिए, which theory? मैक्सिमम shear stress theory. So यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ maximum shear stress theory. So according to maximum shear stress theory, students, according to maximum shear stress theory, okay, so उसका फॉर्मूला क्या है बताइए? व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला ये टाउ मैक्स. ओके, सो आपको सबसे पहले टाउ मैक्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के ऊपर जाते हैं. सो टाउ मैक्स है सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 अपॉन 2. तो सिग्मा n1 आया था हमारा 153.13 माइनस 73.13 divided by 2. So from here we will find out tau max answer. The tau max answer is 113.135 Newton per mm square. I hope you are understanding this very well, students. I hope you are understanding this very well. Okay, perfect. So maximum shear stress theory का formula क्या था बताइए? इस theory का formula tau max equals to, what was the formula student? उसका formula था sigma yt upon 2 times FOS. sigma yt upon 2 times what guys? FOS. So tau max का आंसर क्या है? 113.135. sigma yt was given, it was 380. Are you understanding? अपॉन 2 इंटू FOS कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आंसर, ओके, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आंसर 1.68 आएगा. वेरी गुड कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, गुड कैलकुलेशंस. 1.68 भी आया है. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट कौन से थ्योरी से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना था? शेयर स्ट्रेस का होगा. अभी हम यूज करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी. ओके, बढ़िया. मैक्सिमम normal stress theory, maximum normal stress theory. So maximum normal stress theory का है equals to sigma yt upon FOS. ओके, सीधा फॉर्मूला है सिग्मा n1. सिग्मा n1 वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सिग्मा n1? 153.13 equals to sigma yt. Okay, so sigma yt was how, what? sigma yt कितना था? फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो आंसर ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा. सो द आंसर इज व्हाट स्टूडेंट्स? योर आंसर इज व्हाट? 2.48. देखिए अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे आ गया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी. एंड द थर्ड पॉइंट हियर, थर्ड पॉइंट जो हमें फाइंड करना था कौन सा था? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन. परफेक्ट गाइस, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी. maximum distortion energy theory. Okay, so if you will see the formula of maximum distortion, अभी आप सोच रहे हैं सर maximum distortion theory तो आपने बताया नहीं. what is this? So maximum distortion is nothing but shear strain energy theory. वो क्या है? maximum shear strain energy theory. maximum shear strain energy theory. Okay, so its formula is what? उस formula बताइए क्या है? sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 equals to sigma yt upon FOS का whole square. Okay, so sigma 1 is 153.13 का स्क्वायर प्लस sigma 2 कितना है? sigma 2 कितना है? माइनस 73.14 का स्क्वायर माइनस sigma 1 कितना? sigma 1 कितना है? 153.13
into minus 73.14 equals to sigma yt. Sigma yt is 380 upon FOS का whole square. So from here, from shift solve or normal calculation, आपका आंसर क्या आ रहा है? बताइए बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज द आंसर हियर? व्हाट इज द आंसर? टेल मी फास्ट फास्ट. ओके, ग्रेट ग्रेट, आंसर आ गया है, आंसर आ गया है. सो आंसर हियर इज 1.9. क्या बात है, आंसर है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.9. ओके, सो इन दिस वे दिस वाज अ टाइप 1 न्यूमेरिकल. मतलब यहाँ पे क्या पूछा जाता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाता है. सो देयर कैन बी अनदर थियरी आल्सो. दूसरा थियरी भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थियरी. ओके, दैट कैन बी आल्सो आस्क्ड. ठीक है, दिस इज द वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड स्टूडेंट्स हियर. ओके, perfect. Let us move on to the next question. I hope that you are understanding this question very well. आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन. Okay, so let us deal with the next question. This is your type 2 question. देखिए भाई, एक दो ही टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं. फर्स्ट इज रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी and the second one is what students? It is related to calculating the diameter. आपको diameter मतलब आपको area find करना है. Means you can find out the diameter from it. So a bolt is under a axial pull of 24 kilonewton with a transverse shear force of 5 kilonewton. Okay, transverse shear force कितना है? 5 kilonewton है. So चलिए given data लिख लेते हैं. Okay, given data में क्या दिया है students? Pull value is been given. The value of pull is how much? 24 kilonewton. 24 into 10 raised to 3 newton is been given students. 24 into 10 raised to 3 newton दिया है. So we'll write down very properly. 24 into 10 raised to 3 newton. Shear force is denoted by S. Shear force is denoted by S. S is 5 kilonewton. 5 kilonewton मतलब 5 into 10 raised to 3 newton. ओके, है shear force. Calculate the diameter if bolt using. ओके, हमें diameter find करना है, but take elastic limit of bolt material. एक elastic limit means what? It is sigma yt. So sigma yt equals to 250 megapascal and mu equals to how much? 0.3. and then factor of safety students. The value of factor of safety is what? Factor of safety is 2.5. I hope that you are understanding this very well. ओके, सो सबसे पहले तो सिग्मा n1 फाइंड आउट करते हैं. बट ये जो सिग्मा n1 रहेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट गाइस? दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेते हैं. सो सिग्मा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? P अपॉन A. P है 24,000. ओके, एरिया एज इट इज रखो. योर ऑल आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ एरिया. अभी टाउ फाइंड आउट करते हैं. टाउ मीन्स व्हाट? शेयर फोर्स अपॉन area. So shear force कितना? 5 kilonewton. 5 kilonewton is 5 into 10 raised to 3 upon what students? Upon A. I hope that you're understanding this very well. अभी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है. देखिए ये फॉर्मूला में I will write here this formula. Sigma n equals to sigma upon 2 plus minus under root of सिग्मा बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर. यू विल बी एस्टोनिश, सर ये तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का फॉर्मूला था, सिग्मा कैसे क्या से? सो हियर द सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वैल्यू विल बी, देखो सिग्मा से डिनोट करते हैं, मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिखने से पहले आप डायरेक्टली सिग्मा लिख लो. मींस इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेटली एज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, यू कैन राइट हियर व्हाट डियर स्टूडेंट्स? यू कैन राइट हियर सिग्मा. ओके, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्टली आप सिग्मा की वैल्यू भी लिख सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Are you understanding students? Perfect, very good. So in this way just directly sigma का value put कीजिए. sigma कितना था? 24 into 10 raised to 3 upon A. so upon A के terms में लिखना है. so 24 into 10 raised to 3 upon 2 यहाँ का है, A तो है already A, under root of प्लस माइनस लिख लेता हूं. सिग्मा बाय 2 का स्क्वायर 24 into 10 raised to 3 अपॉन 2 into A का होल स्क्वायर
प्लस टाउ, टाउ 5 किलो न्यूटन था, मीन्स 5 इंटू 10⁻³ अपॉन ए का होल स्क्वायर. नाउ यू हैव टू सॉल्व इट वेरी प्रॉपरली. 2 1s are 2 12s are, मतलब यहाँ पे आया 12 इंटू 10⁻³ अपॉन व्हाट गाइस, अपॉन ए. Okay, plus minus. Now just pay attention here very closely. 2 1s are 2 12s होगा, so यहाँ पर हम लिखेंगे 12 इंटू 10⁻³ अपॉन ए का होल स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये एज इट इज लिख लेते हैं. ओके, सो नाउ डू द कैलकुलेशन वेरी प्रॉपर. कैलकुलेशन मेरे साथ करिए सबने. 12 इंटू 10⁻³ अपॉन ए प्लस माइनस बताइए. 12 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा? 12 इंटू 10⁻³ का ब्रैकेट स्क्वायर. स्टूडेंट्स आई एम डीलिंग हियर विद व्हाट, ब्रैकेट स्क्वायर. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैलकुलेशन कैसे करना है. सो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 44. और ये हो गया 3 इंटू 2 6, और ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस व्हाट गाइस, टाउ 5 का स्क्वायर कितना है? 25. सो 25 इंटू 10⁻6 का ए स्क्वायर. नाउ ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले सकते हो आप. सो 12 इंटू 10⁻³ अपॉन ए प्लस माइनस व्हाट गाइस बताइए. ये बेसिक मैथ्स का रूल है. सो ये ए स्क्वायर हो गया अपॉन में. So what you will do, write here what? We'll write here 144 into 10⁻6 plus 25 into 10⁻6 upon a square. Now you can separate it, students. Separate it. You can separate it. Separate कैसे कर सकते हो? 12 into 10⁻³ upon a plus minus. अब ये separately लिखो. 144. अब ये करो. 144 into 10⁻6 प्लस 25 इंटू 10⁻6. ओके, जो आंसर क्या है उसका? 116 इंटू 10⁻6. सो अंडर रूट आंसर करो उसका. 13 इंटू 10 आया है. कितना आया है? 13 इंटू 10⁻³ अंडर रूट करके. और अंडर रूट और ए स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल. सो यहाँ पे आया आपका वैल्यू ए. देखिए सबको एक स्क्वायर रूट लो. सेपरेटली क्या बनेगा? सेपरेटली स्क्वायर रूट बनेगा डियर स्टूडेंट्स. सेपरेटली स्क्वायर रूट बनेगा यहाँ पे. ओके, फाइन, परफेक्ट. अभी सिग्मा n1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिग्मा n1 के लिए प्लस चाहिए. सो 12 इंटू 10⁻³ अपॉन ए प्लस 13 इंटू 10⁻³ अपॉन ए. सो ए कॉमन आएगा. ए कॉमन आएगा डियर स्टूडेंट्स. सो फुल ए कॉमन करो. 12 प्लस 13 कितना आ रहा है? 25. 25 इंटू 3, 25 इंटू 10⁻3. ये हो गया सिग्मा n1. सिग्मा n2 क्या आएगा बताइए? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा n2 स्टूडेंट्स? ओके, प्लस के जगह पर यहाँ पे जो प्लस था, देखो प्लस हो गया सिग्मा n1. माइनस करो, सिग्मा n2 मिलेगा. 12 इंटू 10⁻³ अपॉन ए माइनस 13 इंटू 10⁻³ अपॉन ए. सो सिग्मा n2 मिलेगा आपको. सो 12 माइनस 13 कितना है? -1000. -1 इंटू 10⁻³ अपॉन ए. आपको ये बेसिक मैथ्स आना चाहिए. ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाले तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, ये प्लस होगा. दिस इज व्हाट स्टूडेंट? दिस इज द वैल्यूज ऑफ व्हाट गाइस? सिग्मा 1. यह है सिग्मा n1 और सिग्मा n2. परफेक्ट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड. हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना था, बट हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स? बताइए फर्स्ट थ्योरी क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. सो व्हाट इज दैट थ्योरी? वो थ्योरी का बेसिक क्या है बताइए? सिग्मा n1 equals to sigma yt upon FOS. So it's all about your calculation. कैलकुलेशन बढ़िया से बढ़िया आना चाहिए. सिग्मा n1 अभी तो कैलकुलेट किया हमने. 25 इंटू 10⁻³ अपॉन ए लिख लो भाई, इक्वल टू सिग्मा yt. सिग्मा yt कितना है? सिग्मा yt कितना था बोलिए?
व्हाट वाज सिग्मा वाई देख लेते हैं एक बार फिर से. हाँ 250. सिग्मा वाई टी वॉज व्हाट गाइस? सिग्मा वाई टी वॉज 250. फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया था स्टूडेंट्स, इट वॉज 2.5. सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको एरिया मिलेगा. सो एरिया का वैल्यू क्या है? 250 आया है क्या? देखिए परफेक्ट. बट हमें एरिया नहीं, डायमीटर फाइंड करना है. एरिया का मीनिंग क्या हुआ? पाई बाय 4 डी स्क्वायर. सो 250 इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी का स्क्वायर. सो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? आपको यहाँ से डी का वैल्यू मिलेगा. सो डी का वैल्यू क्या है? 17 क्या बात है, वेरी गुड. 17.84 बढ़िया से बढ़िया कैलकुलेशन कर रहे हो आप सब लोग, वेरी गुड. सो 17 है. सो ये था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. और कौन सा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. ओके ओके. सो हमें वन मोर पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट वन मोर पॉइंट हियर. टाउ मैक्स. क्या और एक चीज फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वो है टाउ मैक्स. सो टाउ मैक्स सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं. टाउ मैक्स मतलब सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 अपॉन 2. सिग्मा n1 क्या था? 25 इंटू 10⁻³ माइनस सिग्मा n2 क्या था? -1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2. तो सबसे पहले टाउ मैक्स फाइंड कीजिए. सबसे पहले क्या फाइंड कीजिए? टाउ मैक्स आंसर के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स? ओके. सो ये टाउ मैक्स है. सो टाउ मैक्स का जो फॉर्मूला रहेगा, ओके, सो दैट द आंसर विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? परफेक्टली आई वांट द आंसर फ्रॉम योर साइड. बताइए आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओके, और ये ए हो. सो 13 इंटू 10⁻³ नाउ वी विल यूज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. सो टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या था? टाउ मैक्स का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, टाउ मैक्स का क्या फॉर्मूला था? वाई टी था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिग्मा वाई टी था. सिग्मा वाई टी अपॉन व्हाट गाइस? बोलिए. सिग्मा वाई टी अपॉन 2 इंटू एफ ओ एस. 2 इंटू एफ ओ एस. सो टाउ मैक्स कितना? 13 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स? इक्वल्स टू 13, सॉरी, सिग्मा वाई टी नो. सिग्मा वाई टी का वैल्यू क्या था? सिग्मा वाई टी बताइए. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई टी? 250 पफ 250 था, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ ओ एस कितना था? 2.5 था. और टाउ मैक्स का क्या था? 13 टू 10⁻³ ए. यहाँ से आपको ए मिलेगा 260 आना चाहिए, 260. और ए इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर से आपको फिर से डी मिल जाएगा, दैट इज 18.2 mm. 18.2 m. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ से आपको क्या मिला? आपको डायमीटर मिला स्टूडेंट्स. यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट हियर? यू आर फाइंडिंग आउट डायमीटर हियर 18 mm. थर्ड पॉइंट बताइए. थर्ड पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट क्या था? क्या फाइंड करना था? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. ओके, सो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का फॉर्मूला बताइए. बताइए फॉर्मूला क्या था? सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी अपॉन एफ ओ एस का होल स्क्वायर. सो सिग्मा 1 बोलिए. सिग्मा 1 क्या है डियर स्टूडेंट्स? सिग्मा 1 का वैल्यू क्या था? 25 इंटू 10 25 इंटू 10⁻³ अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10⁻³ अपॉन ए का होल स्क्वायर -2. म्यू का वैल्यू क्या था बताइए? म्यू का वैल्यू दिया था 0.3. और सिग्मा 1 जो था 25 इंटू 10⁻³ अपॉन ए इंटू सिग्मा 2. सिग्मा 2 वॉज व्हाट गाइस? -1 इंटू 10⁻³
अपॉन ए, ओके, इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी. व्हाट इज सिग्मा वाई टी यार? सिग्मा वाई टी क्या था? 250 अपॉन 2.5 का होल स्क्वायर. बेसिक मैथ्स यूज कीजिए, आपके पास एरिया मिलेगा आपको. सो एरिया लगभग 253.2 mm² आना चाहिए. एंड देन वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? एरिया का फॉर्मूला क्या है? π/4d². सो जहां पर एरिया आपको लिखना पड़ेगा 253.2 इक्वल्स टू व्हाट गाइस? π/4d². यहां से आपको किसका वैल्यू मिलेगा? आपको वैल्यू मिलेगा डी का, दैट इज 17.95 mm. आई होप दैट यूर अंडरस्टैंडिंग. कैलकुलेशन बढ़िया से बढ़िया करना है आपको. Okay, calculation is very important here. In this way, we had calculated, we had solved here, we had find out here diameter by using maximum principal stress, maximum shear stress and strain energy theory. So maximum principal stress diameter कितना आया है बताइए? diameter कितना आया है? 17.84 mm. 17.84 mm आया है स्टूडेंट्स. ओके, एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपका आंसर आया है 18.2 mm. और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से आपका आंसर आया है 17.95 mm. I hope you are understanding this very well. I hope you are understanding this very well. Okay, perfect guys. Okay, so let us start with the next and the last numeral ऑफ थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर. ये दो टाइप का तो किया है हमने. अब ये तीसरा टाइप का देखते हैं जरा. ओके, हाउ टू सॉल्व इट. ओके, परफेक्ट. लेट अस सी योर स्टूडेंट्स. देखिए क्या है क्वेश्चन, रीड करो. क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई करते आना चाहिए स्टूडेंट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Okay, very crucial it is to understand the type here. Okay, great. So now a solid circular shaft subjected to a bending moment. Bending moment कितना है? m दिया है. Bending moment 60 kilonewton meter and a torque of 15 kilonewton meter. Torque कितना दिया है? 15 Newton meter. We have to again find out the diameter. Mu दिया है, sigma yt दिया है और FOS का वैल्यू भी दिया है. बट देयर इज अ ट्विस्ट हियर. बेंडिंग मोमेंट 1 है. सो आपका जो सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा का फॉर्मूला चेंज होने वाला है. सो m इक्वल्स टू हाउ मच स्टूडेंट? 60 किलो न्यूटन मीटर. न्यूटन mm में कैसे करोगे? 60 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm में करोगे. और टॉर्क कितना दिया है? टॉर्क दिया है 15 किलो न्यूटन मीटर. मींस 15 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm आपका वैल्यू है टॉर्क का. Are you understanding? This is the value of torque, that is 15 into 10⁻⁶ Newton mm. Perfect guys. Okay, उसके बाद आपको find क्या करना है? What we have to find? Here, design the diameter of the shaft. आपको shaft diameter find करना है. Okay, shaft diameter आपको find करना है students. So what will be the shaft diameter? बताइए shaft diameter क्या रहेगा? Okay, D. So first of all म्यू भी दिया है. म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू 0.28. एंड सिग्मा वाई भी दिया है. सिग्मा वाई टी का वैल्यू कितना है? 225 मेगापास्कल. 225 मेगापास्कल. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज हाउ मच? 2.5. ओके, सो अभी जो सिग्मा का फॉर्मूला रहेगा, 16 अपॉन, इट विल बी व्हाट स्टूडेंट? 16 अपॉन पाई डी क्यूब. ओके, 16 अपॉन क्या अपॉन रहेगा स्टूडेंट्स? पाई डी क्यूब m. ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस व्हाट स्टूडेंट्स? अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रहेगा. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डियर स्टूडेंट्स? m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. सो यहां पर भी आपको सेम लॉजिक यूज करना है. सिर्फ इतना फॉर्मूला में फर्क है. अगर मोमेंट और टॉर्क आया तो मोमेंट कितना है? 60 इंटू 10⁻⁶. 60 इंटू 10 है
ओके, एंड देन वी विल हैव व्हाट स्टूडेंट, देन वी विल हैव प्लस माइनस। अगर आप प्लस किए तो आपका आंसर सिग्मा n1 का आएगा, अगर आपने माइनस किए तो आपका आंसर सिग्मा n2 आएगा। सो m कितना है 60 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, प्लस t कितना है स्टूडेंट्स 15 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। Are you understanding? So directly I will write down. I hope you will calculate it very properly, students. Sigma n1 आपको मिलेगा। ओके ओके, इन टर्म्स ऑफ डी निकालना है, इन टर्म्स ऑफ डी निकालना है। विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, दैट विल बी 620.56 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब। यह है सिग्मा n1, और सिग्मा n2 बताइए, सिग्मा n2 बताइए कितना है -9.402। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड कैलकुलेशन यू आर डूइंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन भी आ रहा है, सो हम का लेक्चर किए इससे नहीं है, सो ये होना ही है। सो डी क्यूब -9.402 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब। ये है n1 n2। सर ये कैलकुलेशन कैसे करना है? सबसे पहले तो प्लस कीजिए, प्लस कीजिए आंसर इंटू 16 अपॉन पाई कीजिए, डी क्यूब एज इट इज रखो। सो यहां से क्या मिलेगा आपको सिग्मा n1 और n2। आफ्टर फाइंडिंग सिग्मा n1 एंड सिग्मा n2 वी हैव टू फाइंड आउट टाउ मैक्स आल्सो। टाउ मैक्स भी फाइंड करना पड़ेगा आपको। सो टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या था बताइए? टाउ मैक्स का फॉर्मूला था सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 अपॉन 2। तो सिग्मा n1 क्या था स्टूडेंट? सिग्मा n1 बताइए क्या था? 620.56 इंटू 10⁻⁶ माइनस सिग्मा n2 का वैल्यू क्या था? -9.402 इंटू 10⁻⁶। डी क्यूब सबका कॉमन, इसका कॉमन हो गया। सो हियर व्हाट आई विल डू स्टूडेंट्स, हियर आई विल राइट हियर डी क्यूब। डी क्यूब तो है बट नीचे डिनोमिनेटर को डी बी है तो डी बी लिखना पड़ेगा। सो हियर आई विल राइट डाउन 2d क्यूब। इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन बढ़िया से बढ़िया कीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा, उसके बाद डिवाइड बाय 2 करो। सो आपका जो आंसर है दैट विल बी व्हाट 314.98 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टाउ मैक्स का आंसर क्या है? शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का आंसर देखिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। यस, अपॉन डी क्यूब। Now which theory they had told us first? Maximum principal stress theory बोले हैं। Maximum principal stress theory। So maximum principal stress theory, what you will find out from here students बताइए। आपको D मिल जाएगा यहां से। So maximum principal stress क्या है? सिग्मा n1 इक्वल्स टू सिग्मा yt अपॉन FOS। सिग्मा n1 क्या था बताइए? 620.56 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब था, इक्वल्स टू सिग्मा yt क्या था स्टूडेंट? सिग्मा yt 225 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाज आल्सो देयर 2.5। फ्रॉम हियर आई कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। स्मॉल डी मिल जाएगा आपको, स्मॉल डी बढ़िया से बढ़िया मिले, इट इज 190.33 mm। सो दिस इज द डायमीटर, कैलकुलेशन अच्छा रखिए। सो D equals to 190.33 mm. I hope you are understanding this. 190.33 mm रहेगा। So after the first point, second point that we need was what students? Second कौन सा stress theory था बताइए? कौन सा stress theory था? Maximum shear stress। Okay, maximum shear stress theory। So maximum shear stress theory क्या है?
टाउ इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी अपॉन ट्वाइस एफ ओ एस। टाउ मैक्स देखिए ये वैल्यू है टाउ मैक्स की, टाउ मैक्स पुट किया, सिग्मा वाई टी कितना है 225 अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2.5। यहां से आपको मिलेगा डी का वैल्यू। बताइए बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी हियर, डी का वैल्यू कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? वेरी गुड 191.3 mm, वेरी गुड कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, कीप इट अप। सो 191.3 mm ये हो गया डायमीटर। And the last part here, and the last part that we need to solve here students is maximum strain energy theory। थर्ड क्या पूछा था? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। सो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का फॉर्मूला बताइए क्या था? जस्ट अभी अभी हमने वही सॉल्व किया था, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 होल अपॉन सिग्मा वाई टी अपॉन एफ ओ एस का होल स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है सर, वाह बढ़िया। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वैल्यूज पुट डाउन कीजिए। सो सिग्मा 1 क्या था 620.56 इंटू 10⁻6 अपॉन डी क्यूब का स्क्वायर। अभी देखो इसका भी स्क्वायर होगा ये टर्म का, और डी क्यूब का भी स्क्वायर। डी क्यूब का स्क्वायर कितना? डी क्यूब का स्क्वायर रहेगा d6। सो यहाँ पे आप लिखते वक्त आगे कैलकुलेशन में d6 लिख सकते हो, प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर कितना है माइनस 9.402 इंटू 10⁻6 अपॉन डी क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 इंटू म्यू। म्यू का वैल्यू क्या है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू स्टूडेंट्स हियर? 0.28 0.28 0.28 इंटू 1 सिग्मा 1 बताइए क्या था 620.56 इंटू 10⁻6 होल अपॉन डी क्यूब इंटू माइनस 9.402 इंटू 10⁻6 अपॉन डी क्यूब। डी क्यूब d6 होगा, d6 होगा, d6 होगा, d6 को कॉमन करो ऊपर फाइंड करो, और यहाँ पे RHS तो सिग्मा वाई टी अपॉन एफ ओ एस ये तो वैल्यू मालूम ही है। सिग्मा वाई टी है 225 सिग्मा 225 है ना, यस 225 अपॉन व्हाट गाइस एफ ओ एस इज हाउ मच 2.5 का स्क्वायर। आराम से अगर आप कैलकुलेशन करो तो आपका डी का आंसर भी मिलेगा। सो डी का आंसर मिलेगा 190.62 mm, 190.2 mm। Okay, so in this way we had calculated the diameter for this bending moment रहा तो m और t यूटिलाइज करना है, बेंडिंग मोमेंट रहा तो m और t यूटिलाइज करना है स्टूडेंट्स। I hope you are understanding this very well। Okay, I hope you are understanding this very well। Okay, so this was the end of theories of elastic failure। We had seen 3 parts, 3 different numerical हमने solve किए। Calculation आपको अच्छे से आना चाहिए। Okay, I hope that you liked this lecture। It was nice teaching you guys। Thank you so much।